All right, traders, a very warm welcome to you all. It's Aviral from the Trade Psych, and I welcome you all to post market analysis, outlook, and expectations from the market for the coming week. We'll discuss some of the very crucial levels. What will be the price anticipated price action for the next week for both Nifty 50 and Bank Nifty. We'll also discuss in brief that did like what we anticipated for the current week with the week which just passed by. What price action we anticipated, did it happen or did it not happen? Right, so we'll look into what has happened in the past week, and we'll also discuss about some of the global events which have happened on, I think, Friday. First of all, a very belated happy Holi to everyone. uh, on this auspicious occasion of just before the day when we play Holi with colors, on the just a day before that, we do that Holika Dahan ceremony, right? So just like how we perform the Holika Dahan, you can also burn the negativity in your mind about the stock markets, that the markets are manipulated or you cannot win in the markets. No, it's not like that. इफ़ यू आर इन बिग लॉसेस, अगर आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में इन द पास्ट 1 year, 2 year, 3 year, whatever it is, so never ever think that the markets are structured to make you lose. Your mind, you have structured your mind in a way that you lose money. आप कोई ट्रेड लेते हो और आपका एसएल लगते ही मार्केट रिवर्स करता है, तो आपको ये लगता है दैट मार्केट सिर्फ आपका एसएल खाने आया था। नहीं, द प्रॉब्लम इज दैट कि जहाँ पे आप एग्जिट लेते हो और जहाँ पे आप एंट्री लेते हो ना, इंस्टीट्यूशनल मनी जस्ट उसको ऑपोजिट करता है। बिकॉज हाउ यू ऑपरेट इज, आपने 3 रेड कैंडल स्टिक्स देखी, आप वहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करने जाओगे नहीं। द मोमेंट मार्केट हैज फॉर्म 3 रेड कैंडल स्टिक्स, द मार्केट्स विल बाउंस फ्रॉम दैट। सो नॉर्मल रिटेलर साइकिल क्या होती है? कैच करने की। इफ द फॉल इज हैपनिंग, सो अगर the market has seen 3 daily candlesticks, red candlestick, so the probability of a fourth red candlestick is very less, and generally retailers क्या करते हैं, 3 4 दिन मार्केट गिर गया वहां जाके शॉर्ट कर देंगे। अरे आप पुल बैक पे शॉर्ट करो ना, जब when the markets are showing a pull back to you, जब 3 रेड कैंडलस्टिक के बाद 2 ग्रीन बनी, तो 2 ग्रीन के टॉप पे शॉर्ट करो ना, अगर आपका शॉर्ट करने का सेटअप है। वाई यू आर शॉर्टिंग द मार्केट एट द बॉटम ऑफ द 3 कैंडलस्टिक्स, राइट? Same goes for the case of bullishness. So it's not the markets which are bad, it's your psychology, your mind makeup, which is making a problem for you. All right, so we'll start with the discussion in a while, but before even starting the discussion, if you are someone from the Telegram group and you have been watching my videos from long time and you are happy with the content, leave a like, leave a comment, show some support. The more support you will show to me, you will give me, the better content the better and more content I'll be able to bring to you guys. All right, and if you are someone new watching this video for the first time, and if you have liked the video till the end, leave a like, leave a comment, and if you have not subscribed to the channel, do subscribe to the channel. Right, I'll leave the link to my Telegram group. It's a public group wherein we discuss everything in and out of the trading, whether it's intraday, swing, positional, anything. Right, so that's not a a community wherein you can get calls and puts, not at all. If you are interested in that thing, we do not do that. It's basically a group of members, a community group where we discuss things, where we anticipate things, that if this is the price action, that then this might happen in the next week. All right, so I leave the link to my Telegram group in the group description below. Please do join if you want uh, you know everything in and out of the trading, whether we should go long, whether we should go short. Basically, I post my personal views, right? Currently it's free of cost. And I have set a target personally, until unless it reaches 1,000 target, 1,000 membership, 1,000 people, right? So uh, I will give my knowledge for free, but after a certain amount of time, see, nothing in the world comes free, right? If someone is imparting you knowledge, and if you are going somewhere and if you are buying something, you pay, of course, right? So let's see how it plans, but I'll be always there for everyone who is seeing these videos, and everyone who is on my Telegram community. I will be available personal also.
Personally also, if someone has faced losses, I'll be able to guide them. I hope from my expertise I should be able to guide them. ऑलराइट सो इन दिस वीडियो बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, जो भी आई थिंक जो फ्राइडे का क्लोज हुआ ग्लोबल मार्केट्स का, एक काफ़ी पॉजिटिव क्लोज है. इट वाज अ क्वाइट पॉजिटिव क्लोज एंड गिफ्ट निफ्टी इज ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स अप, राइट. सो एक बार विल डिसाइड, विल डिस्कस दैट क्या डिस्कशन रहेगा वीकली उस पे, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट क्लोज पे. We'll also discuss that how our markets closed on Thursdays, 3 o'clock, Thursday's second half, because Friday ko markets closed the commodity markets were open. We'll discuss about the OI data, we'll discuss about the price action, that what is the price action we can anticipate in the coming week. And मैं आपको ये वीडियो चालू होने से पहले बताता हूँ, आई विल गिव यू द लिंक. ऊपर यहाँ पे वीडियो के ऊपर जाके क्लिक करना टॉप राइट सेक्शन में. आई विल गिव यू द लिंक टू माई प्रीवियस वीकली एनालिसिस, एंड उसमें हमने काइंड ऑफ रफली डिस्कशन यही किया था कि जो नेक्स्ट वीक है इट विल बी अ डोजी वीकली कैंडलस्टिक. डोजी मीन्स द हाई एंड द लोज will be inside the range of highs and lows of the previous weekly candlestick, and I'll take you to charts and exactly वैसा ही हुआ है. ऑलराइट सो थोड़ा सा ये इसमें रिसर्च लगती है, एंड इट इज़ द एक्सपीरियंसेस, इट इज़ माय एक्सपीरियंस विच मेक्स मी एंटिसिपेट दैट the coming week might be a doji candlestick or a range bound movement, right? So exactly in the last weekly analysis, okay, so let's go to the charts and straight let's discuss there. First we'll have a discussion on nifty, right? So देखो थर्सडे को हुआ क्या, मार्केट गया ऊपर एंड एग्जैक्टली 22,550 पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया. और ये लाइन, ये जो लेवल थी, हमने जो टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन किया था कि इफ़ इट ऑल यू वांट टू गो लॉन्ग ओनली अबव 680, क्योंकि इसके ऊपर ही मुझे कोई लॉन्ग दिख रहा था. क्योंकि अनटिल अनलेस दिस लेवल 680 का जो लेवल है, 700 टू 680 का जो रेंज है, जब तक ये नहीं निकलेगा तो मार्केट्स इसी पूरी रेंज में ऊपर नीचे करता रहेगा, राइट. सो दिस आई क्लियरली मेंशन इन द टेलीग्राम ग्रुप कि मार्केट माइट डू अ शॉर्ट कवरिंग इफ एट ऑल वी क्रॉस 22,500 टिल 550. वो मार्केट ने 550 की, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड किया और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया. अब देखो मार्केट में अभी पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं आई है. वी आर नॉट येट एबल टू क्लोज अबव प्रायर डेली हाई, अबव प्रायर वीकली हाई. मंथली हाई तो भूल जाओ, हम डेली हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे. So there is nothing to cheer for the markets other than that Friday weekly close on the global markets, which has made Gift Nifty up 150 points. So we might see a positive opening in the markets on Monday morning. It totally depends on the Gift Nifty where it goes in the first 3 hour of the trading session from 6:30 to 9 o'clock, right, to 2.5 hour session, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. फ्राइडे को मार्केट ऊपर गए, 550 से रेजिस्टेंस लिए एंड मार्केट वापस नीचे आ गए, तो एक ये बहुत अच्छा सप्लाई का लेवल बना हुआ है 22,550. ऑलराइट, सो विल फर्स्ट गो ऑन वीकली टाइम फ्रेम, एंड एक बार ऑन अ ब्रीफ विल डिस्कस कि देखो प्राइस एक्शन बना क्या है यहाँ पे. हमने क्या डिस्कस किया था, ये इसका हाई होगा और ये इसका लो होगा. एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आई हैव गिवन यू द लिंक एंड आई हैव attach the link to my previous weekly analysis video. You go and you see. तो हमने डिस्कशन एसेंशियली ये किया था कि until unless this range is being taken out on hourly basis or on daily basis, the range I'm talking about is 22,680 and on the downside is 22,000. एग्जैक्टली हमने ये डिस्कस किया था, अगर ये रेंज नहीं टेक आउट होती तो ये एक डोजी कैंडल होगी, एंड विद कंफर्मेशन, नॉट विद कंफर्मेशन, विद कन्विक्शन. मैंने यही बोला था, आई ओनली सेट द सेम थिंग कि भाई अगर ये रेंज नहीं निकली तो डोजी होगा. और whether the range is being taken out on the upside or downside does not matter. I firmly said that there is a high probability that we might see a doji candlestick, और exactly वैसा हुआ. वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक डोजी कैंडलस्टिक देखने को मिल रही है, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है. देखो तो फंडामेंटली मैं आपको समझाता हूँ कि जो नेक्स्ट बुलिश ट्रिगर है ना वो कहाँ मिलेगा मार्केट को. फंडामेंटली द नेक्स्ट बुलिश ट्रिगर वुड बी द अप्रैल अर्निंग सीजन, सिंपल. और कोई हमारे पास बुलिश ट्रिगर नहीं है. एक बुलिश ट्रिगर आया था आईआईपी डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा आता है, दैट वाज गुड, अच्छा ठीक था डेटा, उसमें कोई बुराई नहीं थी. एंड एक और जो डेटा आया था हमारा इन्फ्लेशन.
दो पॉजिटिव डेटा आए थे लास्ट वीक में, बट ऑन थर्सडे एट द एंड मार्केट नीचे जाके बंद हुए फॉर सम रीजन, नो बडी नोस। अगर मैं आपको ऑप्शन डेटा दिखाऊंगा ना, आप लोग डर जाओगे, यू गाइज विल बी स्केर्ड टू डेथ द मोमेंट यूल सी ऑप्शन डेटा, द ओपन इंटरेस्ट डेटा, नॉट सॉरी नॉट द ऑप्शन डेटा, द ओपन इंटरेस्ट डेटा। और जो लास्ट का फॉल आया ना, वो एक एंटिसिपेशन में ही आया है कि जो डेटा बन के गया है वो जस्टिफाई करता है कि लास्ट में जो 150 पॉइंट्स का फॉल आया वो इसी वजह से आया, राइट। तो एक बार ओआई डेटा का भी एनालिसिस कर लेते हैं, बट नाउ सिंस वी हैव सीन अनदर डोजी, लास्ट कैंडलस्टिक वाज आल्सो डोजी एंड दिस कैंडलस्टिक इज आल्सो डोजी, तीन कैंडलस्टिक हो गई है सेम रेंज में। सो दिस इज बैड फॉर मोमेंटम ट्रेडर्स, दिस इज बैड फॉर ट्रेंड ट्रेडर्स, क्योंकि 3 हफ्ते हो गए हमें कोई ट्रेंड नहीं मिला, 3 हफ्ते ऑलमोस्ट, इफ यू टेक 2 weeks, so it is almost half of March and 1 week of last week of February. So from last week of February till half of March we have not got any trend in the markets, and I know ये एक difficult phase है for option buyers, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, VIX है 13 का। When the VIX is so low, it is very difficult to make money in the market in option buying. Simple as that, right? And this is the point I've been focusing on from long time. I made a Twitter post on that which went viral, right? I hope if you are from the Telegram community, you must know. You must know that I posted that thread on my Twitter group, on my X, sorry, Telegram community group also, राइट। तो देखो, अब यहाँ पे ट्रेंड में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ट्रेंड में ट्रेंड क्या था, एक बड़ी कैंडल स्टिक्स, फिर 2 weeks का पॉज, फिर एक बड़ी कैंडल स्टिक, दो 2 weeks का पॉज। नाउ फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने जो डाउन टर्न आया यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, 4 weeks का अपसाइड, बड़ा कैंडल स्टिक, 2 weeks पॉज, बड़ा कैंडल स्टिक्स, 2 to 3 weeks पॉज, बड़ा कैंडल स्टिक, एग्जैक्टली 3 week का पॉज आ चुका है, राइट। एग्जैक्टली यहाँ पे 3 weeks का पॉज आ चुका है, एंड द मार्केट्स आर परफेक्टली राइप फॉर अ ट्रेंडिंग मूवमेंट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मतलब 17 ऑफ मार्च से लेके आपका 21 ऑफ मार्च तक मार्केट्स आर परफेक्टली राइप फॉर अ गुड मोमेंटम। क्योंकि 3 वीक अगर मार्केट एक ही रेंज में रह गया, एक बॉक्स रेंज में, या एक सिंगल हाई और एक सिंगल लो पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, एंड पॉजिटिव पॉइंट देखो यहाँ पे ये है कि मार्केट का जो वीकली क्लोज आया है वो प्रायर वीकली कैंडलस्टिक के ऊपर है, बट डेली में पिक्चर थोड़ी अलग है, राइट। डेली एंड आर्ली में थोड़ा पिक्चर अलग है। वीकली पे इफ द ट्रेंड हैज टू गेट कंटिन्यूड, तो हम व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रेक बिफोर प्रायर वीकली लो विच इज 22,300, एंड एक मूव आएगा 22,000 तक का, ऑलराइट। सो ये लेवल क्रूशली जाके मार्क कर लेना, और ये लेवल मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत क्रूशल लेवल है। इफ in some point of time in the coming next week, if 22,300 is being broken and we have sustained for 30 minutes to 1 hour candlesticks below this level, I think 22,000 is imminent. And now if the level of 22,000 is being broken, this we discussed last week, तो यहाँ पे वापस इस वीक में डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है, लंबा चौड़ा डिस्कशन। तो 21,270 नीचे का लेवल इमिनेंट दिखता है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, द ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज 22,700 और 680 ऑन द अपसाइड एंड 22,300 ऑन द डाउन साइड। ये डे बाय डे, वीक बाय वीक, these levels are getting thin. These sorry, not levels, these ranges are getting thin. बाय रेंजेस आर गेटिंग थिंग आई मीन कि रेंज जो हो रही है वो पतली होती जा रही है। लास्ट वीक की जो रेंज थी वो इतनी बड़ी रेंज थी, 22,680 से लेके आपका 22,000। अब जो रेंज आ चुकी है वो है 22,300 से लेके 700, रफली 400 पॉइंट रेंज। पहले 600 पॉइंट रेंज थी, अब एक 400 पॉइंट रेंज है सिर्फ। द गुड पॉइंट ऑन वीकली टाइम फ्रेम इज, यहाँ पे नेगेटिविटी मुझे अभी एसेज दिखी नहीं। नेगेटिव जब होता जब प्रायर वीक के लो के बिलो और लो के आसपास क्लोजिंग आती, रफली। बट नाउ वी आर अबव द क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग इज अबव 50% ऑफ प्रायर वीकली कैंडल स्टिक्स विच इज स्टिल अ डिसेंट साइन। सो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इट इज अटर कंफ्यूजन एंड द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स आर नॉट श्योर वेदर on which direction the market has to go, right? So
एक ट्रेड मैंने आपको क्लियर यहाँ पे दे दी, अगर 22,300 इफ इट ब्रेक्स डाउन एंड इफ इट सस्टेन्स फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर बिलो इट, देयर इज अ क्लियर शॉर्ट ट्रेंड ऑफ, क्योंकि एग्जैक्टली आप ऐसा तो है नहीं कि आप 22,300 टूटते ही ले लोगे ट्रेड, द बट द मोमेंट, और इसको ना आई टेल यू वन थिंग हाउ टू मैप दिस विद ऑप्शन प्राइसेस। आई डू वन थिंग, लेट्स टेक, इफ थोड़ा सा इन नंबर निकलते हैं, 22,500 का पुट ऑप्शन लेते हैं, राइट, मार्च एक्सपायरी, इसका मार्च की मंथली एक्सपायरी का, राइट, और यहाँ पे इसका वीकली चार्ट देखते हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे अगर इसका वीकली चार्ट आप देखोगे तो ऊपर से ये नीचे कितना है, तो इसमें आप ये देखो डीके कितना तगड़ा हो चुका है, जबकि वीकली का आप देखोगे रेड कैंडलस्टिक है यहाँ पे, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है, तो ये एक बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक होनी चाहिए थी, जिसका जो बॉडी है वो यहाँ तक होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट ये है इतना, तो ये वाला जो डिफरेंस होता है ना, ये वाला, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टाइम डीके, राइट। तो ये ऑप्शन कब बुलिश होगा, अगर आपको मान लो एक डाउन ट्रेड ट्रेड करनी है प्रायर वीकली हाई के ऊपर, विच इज़ रफली 330। सो इफ इट ऑल दिस ऑप्शन क्रॉसेस द लेवल ऑफ 330, इसमें नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 460, उसके ऊपर 530 एंड 600, डबल हो सकता है ये ऑप्शन, कब, जब इस ऑप्शन पे 325 से 330 का लेवल निकल जाएगा, ठीक है। वीकली एनालिसिस में एक डोजी कैंडल स्टिक है, परफेक्ट डोजी, एंड डोजी का रूल ये होता है हाई और लो मार्क कर लो, और जहाँ पे भी जिस साइड पे टूटा, और अब ये वाई इट इज़ वेरी वेरी हाई प्रोबेबल दैट द नेक्स्ट वीक दीज हाइज एंड लोज विल बी टेकन आउट एंड इट विल बी ट्रेंडिंग मूव, बिकॉज देखो मार्केट मूव्स इन अ fashion, in a way. First, there will be a trending move. To digest that trending moves, there will be a sideways or consolidation move, and to again go into trending move, we have to give the trending, and sorry, the markets are moving in a phase trending, sideways, and trending. So now we saw a very trending move in 3 weeks, 2 weeks consolidation, and again a trending move can happen. But it depends on which side the market will go. So we'll decode more on the drill down of the time frame, राइट। सो ऑन वीकली टाइम फ्रेम अगर हम 22,700 का हाई निकालते हैं, ये लेवल्स पिछले बार भी डिस्कस किए थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 23,000 एंड अबव 23,000, 23,500, ठीक है। नेक्स्ट वीक का मूव मैं इससे बड़ा देख नहीं रहा हूँ। ऑन द डाउन साइड अगर 22,300 का लेवल ब्रेक करता है, इफ इट ब्रेक्स डाउन, 22,000 इज द फर्स्ट टारगेट, अगर 22,000 टूटा तो 21,270 वुड बी द सेकेंड टारगेट, ठीक है। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। अच्छा, यहाँ पे मूविंग एवरेज देखो वीकली का 100 ईएमए है, और एक बार हम ऑलरेडी सपोर्ट ले चुके हैं, तो यहाँ पे भी देखो एक बार हमने सपोर्ट लिया था वीकली 50 ईएमए का, ऊपर जाने के बाद कितने वीक्स का, 1 2 3 4 वीक्स के बाद जो फिफ्थ वीक था, एक बड़ा ड्रॉप, फिर एक हमने सपोर्ट लिया, फिर एक यहाँ पे फाइनली वी ब्रोक डाउन अराउंड हेयर। सो पॉसिबिलिटी देखो, अगर मार्केट ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो हो सकता है एक बड़ा कैंडल आ जाए यहाँ से नेक्स्ट वीक का, मान लो 2 वीक्स में आ जाए, एंड द थर्ड विल बी अ बिगर फकिंग ड्रॉप, जब तक ये और थोड़ी सी ये वाली जो आपकी मूविंग एवरेज ये फ्लैटन आउट हो जाएगी, फिर जो इसका सेकंड हिट होगा यहाँ पे मार्केट ब्रेक करके ये दे देगा, ऐसा मूव हो सकता है, राइट। बट उसके लिए द ओनली रिक्वायरमेंट इज, इफ इट ऑल वी आर क्रॉसिंग 22,700 ऑन द अपसाइड, 680 to 700 का रेंज हमें निकालना होगा अपसाइड पे, उसके बिना आपका बुलिश मूवमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। डेली पे अगर मैं आपको क्लोजिंग दिखाऊं, थोड़ी सी वरिंग है डेली पे क्लोजिंग, और हमने एग्जैक्टली पता है लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था, व्हाट वी डिस्कस कि होगा क्या मार्केट में, मार्केट जो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक होगा वो जाएगा ऊपर, एग्जैक्टली मार्केट गया, और ऑन थर्सडे, ये तो फ्राइडे की छुट्टी थी तभी इतना फॉल आ गया, वरना थर्सडे को मार्केट साइज होकर फ्राइडे को ये 100 पॉइंट का फॉल आ जाता। तो हमने लास्ट वीकली एनालिसिस में वी डिस्कस द सेम थिंग, दैट यू नो what we might do is go, because since we have to close our doji, so what we might do is first go up, and in the second half of the week we might come down, और exactly वैसा ही हुआ, right। so I'll go to daily time frame, and daily पे जो closing आई है, it is nearer to prior day low, जहाँ पे हम वीकली में देख रहे थे इट इज़ अवे फ्रॉम प्रायर वीकली लो, वहीं पे डेली में एक बार क्लोजिंग मेरे को वरिंग लग रही है, द क्लोजिंग इज़ नॉट गुड। एंड डेली में देखो हुआ क्या है कि जब भी रिवर्जन हुए हैं मार्केट के, तो ये फर्स्ट रिवर्जन था, ये सेकंड रिवर्जन, राइट, थर्ड रिवर्जन भी होता है,
एक ट्रेंड लाइन, अब देखो यहाँ से ना मैं आपको एक चीज़ दिखा, आई मेक यू गाइस सी वन मोर थिंग। देयर इज अ ट्रेंड लाइन कमिंग फ्रॉम द अपसाइड, ठीक है। अब अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को छुए बिना ही वापस रिटर्न कर रहा है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन, देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ऐसी कोई ट्रेंड लाइन है तो उस पर एटलीस्ट 4 to 5 हिट्स आते हैं उसको तोड़ने से पहले। फर्स्ट हिट, सेकेंड हिट, थर्ड हिट, और अगर आप इसको और करोगे, इसको यहाँ से एक्सटेंड करो, फोर्थ हिट, और नीचे जाता है मार्केट, फिफ्थ हिट पे नीचे जाता है, फिर यहाँ सस्टेन करता है और फिर ये ब्रेकआउट होता है और फिर ये एक नई ट्रेंड लाइन चालू होती है ऐसे। सो दिस इज द प्राइस एक्शन विच गेट्स फॉलोड ऑन बिगर टाइम फ्रेम्स। तो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट हिट आया, सेकेंड हिट, थर्ड हिट, अभी तो 3 हिट ही हुए हैं। तो अगर यहाँ तक मार्केट आता भी है तो मेरे को प्रोबेबल प्राइस एक्शन यही लग रहा है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, जो नीचे ये चैनल चल रहा है हमारा। अगर आप ये चैनल देखोगे तो इस चैनल के हिसाब से मुझे एक हिट लग रहा है, फिर ये चौथा हिट आएगा यहाँ पे, फिफ्थ हिट आएगा, फिर यहाँ से हल्का सा नीचे जाके यहाँ होल्ड ऑन करके यहाँ से मार्केट ऐसा कुछ चला जाएगा। तो अभी इस ट्रेंड लाइन पे भी सिर्फ 3 ही हिट्स हुए हैं, राइट। सो द रिक्वायरमेंट हेयर इज सिंस, अब देखो लास्ट टाइम, और अगर आप मूविंग एवरेजेस से भी डिस्कस करोगे तो जो 50 मूविंग एवरेज आपका चल रहा था डेली का, डेली 50 डीमा, वहाँ से टर्न अराउंड हुआ। उससे पहले मार्केट उसके ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बाद रिटर्न कर गया, तो यहाँ पे ठीक था मार्केट, क्योंकि सारी मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। यहाँ पे वीकनेस थी, इसलिए मार्केट 100 डीमा के ऊपर नहीं जा पाया और उससे पहले टर्न अराउंड हो गया। अच्छा, लास्ट वीक डेली पे हमने क्या डिस्कशन किया था पता है? जाके देखना डेली टाइम फ्रेम का डिस्कशन एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने क्या सोचा था कि जो ये 20 डीमा है ना, ये परफेक्ट पॉइंट रहेगा बेयर्स के लिए शॉर्ट करने के लिए। वाई? बिकॉज जो लास्ट रेजिस्टेंस आया था वो 50 डीमा से आया था। तो जितने भी बेयर्स के एसएल होते हैं वो यहीं पे होते हैं, और अगर उनको एवरेज डाउन करना है तो वो एसएल नहीं देंगे, यहाँ पे और एवरेज डाउन करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे और एवरेज डाउन किया ही है, जस्ट टू मेक द मार्केट्स फॉल बिगर, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे वीक है क्लोजिंग, देर इज ओनली आई थिंक 100 पॉइंट्स का मूवमेंट बचा है यहाँ पे टू ब्रेक द प्रायर वीकली लो विच इज 22,300, ठीक है। एंड डेली लो जो है, मेरे हिसाब से डेली पे हाई और लो मार्क करने का नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि अगर देखो डेली हाई है 560 570, ये पॉइंट निकल गया, इसके ऊपर तो हमें वैसे ही बुलिश जाना है 680 के ऊपर। तो यहाँ से 100 पॉइंट खेल के, जिसमें आपका विक्स ही आपका 13 का है, तो आपको ऑप्शन में 30-40 रुपये मिलेंगे। अब कोई हाई क्वांटिटी पे खेले उसके लिए एक ट्रेड बन सकती है कि आप यहाँ पे एक 550 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है एंड इफ इट सस्टेन फॉर 30 मिनट्स, तो 680 700 का टारगेट रख लो। बट सॉरी, कल होली थी एंड आई गॉट वेरी टायर्ड और लेट सोया था एंड जल्दी उठ गया, इसलिए हल्की सी उबासी आ रही है, बट आई होप यू कैन एक्सक्यूज मी फॉर दैट, ठीक है। तो अगर ये 100 पॉइंट का आपको ट्रेड करना है, क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड तो कर सकते हो। 560 570 के ऊपर निकले तो 680 690 तक ये मूव आ सकता है। बट ऑन द डाउन साइड सेम केस है, 380 का 370 380 का मार्केट का प्रायर डे लो आएगा, 378 का है टू बी प्रिसाइज, और 380 का वीकली लो है, तो ये 50 पॉइंट ट्रेड करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो सिंपल रेंज एक रखो, ये भी रेंज हटा देता हूँ मैं। वीकली रेंज है 22,300 एंड 22,680 ऑन द अपसाइड, दैट्स इट। लास्ट वीक हमने डेली पे ये डिस्कस किया था, जो बेयर्स हैं अगर उनको एक्टिवेट होना होगा वो इसी रेंज में एक्टिवेट होंगे, राइट। तो अगर मार्केट एनी इन चांस 22,300 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो मार्केट सीधा आपको 21,970 तो ले ही आएगा, या इसके ऊपर अगर 22,680 मार्केट सस्टेन करता है और ब्रेकआउट करता है, और एग्जैक्टली 23,000 क्यों आपका एक मूव आएगा मैं आपको बताता हूँ। डीमा 50 एम है, आप ये चीज़ को याद रखो, जो डीमा 50 एम है, 50 डीमा जो होता है वो वहीं पे, तो मार्केट रफली वहीं रेजिस्टेंस ले लेगा 22,000 या 22,100। अगर मार्केट 680 700 के ऊपर निकलता है तो वो 300 पॉइंट का मूव ये वाला आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। ऑलराइट, अगर मार्केट ने ये तोड़ा तो नीचे ऊपर के लेवल डिस्कस है, लेट्स गो ऑन अर्ली टाइम फ्रेम। एंड अर्ली टाइम फ्रेम पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि जो भी मार्केट का डिस्कशन रहेगा अर्ली टाइम फ्रेम पे वो क्या रहेगा। अच्छा देखो, अब अर्ली टाइम फ्रेम पे हुआ क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने पहले तो ऊपर एम बनाया, यहाँ पे ट्रैप कर लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया डब्लू बनाने का, फिर मार्क लोग यहाँ पे लॉन्ग जाने ही वाले थे कि यहाँ से फिर नीचे आ गया मार्केट,
तो अर्ली में वी हैव द ट्रेंड एज नेगेटिव बिकॉज वी हैव क्लोज बिलो प्रायर अर्ली लो। हाल ही में मेरे को एक वीक स्ट्रक्चर ही दिख रहा है, तो ये एक मान लो आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही चल रहा है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन आ सकता है। और मेरा नेक्स्ट वीक के लिए मेरा बायस नेगेटिव ही है फॉर द सुप्रीम टू रीजंस। मैं आपको समझाता हूँ कि एक तो इस ट्रेंड लाइन पे इतने हिट्स आए नहीं, ये ब्रेक हो जाए। दूसरा, मार्केट्स हैव स्टार्टेड टर्न अराउंड इवन बिलो 50 डीमा। 20 डीमा से मार्केट टर्न अराउंड कर रहा है, जो कि मेरे लिए तो थोड़ा नेगेटिव साइन है। प्लस आई एम थर्ड पॉइंट, आई एम सीइंग द ओआई डेटा। सो 15 मिनट्स पे चलते हैं और एग्जैक्टली ओपनिंग के कॉन्टेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट एक पर्टिकुलर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया, आपको कैसे टैकल करना है। देखो, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया ना, तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है मार्केट में। अगर मार्केट ने 680 का लेवल बाई चांस निकाल दिया, क्योंकि सिस्टम में शॉर्ट्स इतने अबंडेंट हैं कि अगर किसी रीज़न से 680 100 का निकला और यहीं पे सस्टेन कर गया मार्केट्स, 2-3 मिनट्स कैंडल स्टिक्स आ गई यहाँ पे, मान लो यहाँ कहीं गैप खुल रहा है, गैप बोल के ये सस्टेन हो गया मार्केट ऐसे, क्योंकि जनरली गैप्स फिल ही होते हैं। अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट रैली किया तो पॉजिटिव साइन होगा मेरे लिए, मैं फिर बाय ऑन डिप्स का मार्केट देखूंगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, लेट्स सपोज 250, तो एक जो यहाँ पे शॉर्ट्स कैरी होके गए ना, एक बार ये बुक होंगे, गैप थोड़ा शायद होगा कवर हो सकता है, एंड मार्केट विल स्टार्ट अगेन मूविंग डाउन। राइट। तो बड़ा गैप डाउन और बड़े गैप अप में मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है इस रेंज में, इस रेंज को मत टच करना। मैं प्लीज़, आई एम अगेन एंड अगेन वार्निंग, ये मार्केट्स वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। विक्स 13 का चल रहा है, ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटीज जीरो हो चुकी है, जीरो। जब नवंबर दिसंबर का फॉल आ रहा था, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर, तब विक्स हमारा ट्रेड करता था 15 14 इट यूज टू गो टिल 18 19। तो वो एक ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत अच्छा फेस होता था, क्योंकि वहाँ पे मूव करते थे प्रीमियम। अगर मार्केट 100 पॉइंट गिर रहा है तो आपका ऑप्शन भी 60 70 पॉइंट गिरता ही था। राइट। तो बस ये रेंज है, इस रेंज के बाहर ही आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, और इस रेंज के बाद जो मिलेगा वो आपको ट्रेड करना पड़ेगा। सॉरी पता नहीं आज क्या हो गया, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। देखो, बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, एक शॉर्ट सेटअप दिया हुआ है हमने ऑन द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हेड एंड शोल्डर्स। राइट। अगर 48,000 का लेवल बहुत क्रूशियल है ओआई डेटा के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, अगर 48,000 का लेवल टूटता है मार्केट में, राइट, if the market tries to break down 48,000, the level of 48,000 next coming week, तो मार्केट के अच्छा नहीं होगा। और वही शायद, आई थिंक दैट द ओनली फेयर मार्केट हैज इज बैंक निफ्टी। अब हुआ क्या है, जो इंडसइंड बैंक वाला इशू क्रिएट हुआ है, तो आरबीआई ने बोला है कि हम और बैंक्स को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, और किसी, अब एक बैंक में है, एक बैंक का एम्प्लॉय या एक बैंक का मैनेजमेंट ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है कि डेरिवेटिव में लॉस हो गया 1500 करोड़ का, तो एक ही निराला बैंक होगा पूरे सिस्टम में? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, इट कैन नॉट हैपन। सो देर आर मोर, आई थिंक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, देर आर मोर बैंक्स इन्वॉल्व इन दिस होल स्टोरी सागा, इन दिस होल सागा, एंड देर माइट बी रिलीज ऑफ सम रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर बैंक्स ऑल्सो। ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस कि इसका एक बार वीकली पे चलते हैं। और ये हमने कुछ एक शॉर्ट सेटअप दिया हुआ है फॉर बैंक निफ्टी, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर्स का अगर ब्रेकडाउन होता है फ्रॉम द लेवल ऑफ 47,850, तो ये पूरा बड़ा मूवमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार सारी ड्राइंग्स क्लियर कर देते हैं। और बैंक निफ्टी में वीकली क्लोज इज वीकर रिलेटिव टू निफ्टी, क्योंकि हुआ क्या है कि निफ्टी को सपोर्ट किसने किया है? आपके मेटल ने, आपके व्हाट डू यू से, ऑटोज ने, आई मेटल्स, ऑटोज, एंड एक सेक्टर कोई और था जिसने जिसने निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट करके बुलिश रखा हुआ है। तो बैंक निफ्टी की बहुत आपकी एक नेगेटिव क्लोजिंग मानूंगा मैं इस चीज़ को, बहुत तो नेगेटिव नहीं, बट हाँ, अगर प्रायर वीकली क्लोजिंग के नीचे आगे क्लोज कर रहा है, अच्छी नहीं है क्लोजिंग। तो ये मुझे
इसका प्राइस एक्शन देखिए, मुझे डर इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अगर 48,000 टूटा, क्योंकि देखो ऑलरेडी मार्केट इस सपोर्ट के नीचे वीकली क्लोज दे चुका है, एक दे चुका है, दो दे चुका है, और तीसरी क्लोजिंग है, ये जो सपोर्ट था। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो मेरे को देख के आता है ना, वो आता है 45,000 का। और मैं अगर और डीपर चल जाऊँ, अगर ये 100 वीकली EMA तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने, विच इज एट 47,500, सिस्टम जो एक्टिवेट होगा ना नीचे के लेवल के लिए, वो हो जाएगा 43 40, क्योंकि ये भी फ्लैट होगी धीरे धीरे, 43 400 500 के लिए एक्टिवेट हो जाएगा सिस्टम। तो भगवान से प्रे करना, प्रार्थना करना कि द लेवल ऑफ 48,000 शुड नॉट गेट ब्रोकन, और 47,850। अच्छा, इसमें ये हो सकता है क्योंकि 47,500 पे एक आपका वीकली एम है, तो हो सकता है कि ये आपको यहाँ से तोड़ के प्रायर वीकली लो यहाँ तक ले आए और थोड़ा सा नीचे जाके ट्रैप कर दे, ये हो सकता है। तो ऐसे लगा के चलना, हेजेस लेके चलना, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट लेवल इज 47,700, अगर वो ब्रेक हुआ तो 47 तक, 47,500 तक इजी मूव है। बट 47,500 के नीचे बड़े टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, विच विल बी दिस, राइट। ऑन द अपसाइड अगर 48,500 या 600 निकलता है, तो आपके लिए क्या लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे ऊपर, 49,000, 49,000 के ऊपर 49,650, और 49,650 के ऊपर 50,000। अच्छा, हमने एक सेटअप दिया था यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए, जो हम जिसको डब्ल्यू सेटअप हम कॉल कर रहे थे, तो वो इनवैलिडेट कब होगा, इस के बॉटम के नीचे, विच इज 40, आपका 47,500 के नीचे एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो जाएगा वो बुलिश सेटअप, राइट। अगर डेली टाइम फ्रेम पे चले बैंक निफ्टी में, डेली टाइम फ्रेम पे ठीक क्लोजिंग आई है, कोई बुरी नहीं है इतनी, प्रायर डे के क्लोजिंग पे ही क्लोज आ गया, तो टेक्निकली मार्केट 2 दिन मिला के कहीं गया ही नहीं, बैंक निफ्टी, नॉट मार्केट, बैंक निफ्टी, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे आप एक लेवल मार्क कर लो बैंक निफ्टी, अगर आप ट्रेड करते हो 48,350 ऑन द अपसाइड एंड 48,000, अगर 48,000 टूटता है 47,800, 47,700 एंड 47,500, ये लेवल आपके पास आ सकते हैं। ऑन द अपसाइड if we break down, no sorry, on the upside level if we break out 48,500, ये वाला लेवल 48,500 अगर हमने निकाला, तो ये आपको इस यहाँ तक की तो एक इजी ट्रेड मिल जाएगी, 48,900 तक की 200-250 पॉइंट मिल जाएंगे, स्टार्टर होगा। क्योंकि देखो, अगर आप सिंपल ये सोचो कि मार्केट को अगर डब्ल्यू बनाना है तो वो मंडे से अपस्ट्राइट स्टार्ट कर देगा, तो ये पहला लेवल निकलना चाहिए 48,350, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का डिस्कशन। अच्छा, बैंक निफ्टी में बन क्या रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बट हुआ क्या है यहाँ पे कि 1 2 3 4 और ये पांचवा सपोर्ट होगा ऑन द डाउन साइड, तो एक सपोर्ट एक जोन अगर 5 6 बार हिट हो रहा है तो वीक हो चुका है, सिंपल है, ठीक है। लेट्स गो टू अर्ली टाइम फ्रेम। अर्ली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो क्लियर कट प्राइस एक्शन चल रहा है बैंक निफ्टी का, अप डाउन, सॉरी अप डाउन अप डाउन अप डाउन, नाउ द अप हैज completed and the down is ready, ठीक है। अब जो डाउन है यहाँ पे वो कहाँ तक आ सकता है, पहला लेवल तो यही है, दूसरा लेवल ये वाला 47, तीसरा लेवल आपका ये वाला 46, और फिफ्थ एंड द फाइनल लेवल विल बी 45,000, ठीक है। गैप अप, गैप डाउन की बात कर लेते हैं एक बारी। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स आ सकता है मार्केट में, बट ये जो रैली है इसका 50% आता है रफली रफली 48,250 के अराउंड, ये क्रॉस होने दो, इसके ऊपर पहला मूव आपको 4350 350 के ऊपर तो खुला आसमान है, फिर आपको मालूम, ये बताया मैंने जस्ट अभी, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, जस्ट वेट फॉर द लेवल्स of these to get broken and we'll trade a short trade in bank nifty, we can play in bank nifty also,
ठीक है, आई होप द प्राइस एक्शन ऑफ बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज क्लियर फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड नेक्स्ट वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ट्रेंडिंग मूव मार्केट में, सी ड्यू टू निफ्टी। या तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा, या फिर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न एज एन मतलब, ये देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो ये एक और यहाँ पे हो सकता है कि वीकली डोजी बना दे, राइट। So quickly we can go and we can also discuss the OI data because I think Friday was a holiday. So जो OI data बन के गया होगा, that was built for the next coming expiry, and ये मेरा दूसरा कट होगा, वीडियो का दूसरा अपलोड होगा, बिकॉज इन द फर्स्ट अपलोड ऑफ द वीडियो, अपॉलोजीज फ्रॉम माय साइड, जो OI डेटा का एनालिसिस मैंने अपलोड किया था दैट वाज फ्रॉम द एक्सपायरी विच जस्ट गॉट पास्ड अवे। आई थिंक 13 मार्च की एक्सपायरी का मैंने OI डेटा का एनालिसिस किया। वेरी वेरी थैंक्स टू दैट व्यूअर जिसने ये पॉइंट आउट किया, अदरवाइज मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ता। एंड वेरी सॉरी फ्रॉम माय साइड कि आपको गलत डेटा का एनालिसिस मेरी तरफ से आया है, बट थैंक्स एंड विल जस्ट एनालाइज। और ये मेरा दूसरा कट होगा, तो मैं जो फर्स्ट वाली वीडियो है उसको रिमूव करके ये वाला एडिट डाल के आई विल जस्ट गिव यू द एनालिसिस, न्यू एनालिसिस, राइट। सो आई विल शिफ्ट टू 20 मार्च ऑफ एक्सपायरी फॉर निफ्टी। एंड अगर इस एक्सपायरी में हम OI चेंज देखें, सो 3 करोड़ शॉर्ट्स हैं एंड 2 करोड़ लॉन्ग्स है। तो उससे देखो, जो हमने पहले एनालिसिस किया था वो सिर्फ 13 का था, इसलिए मैं वो एडिट करके ये नया अपलोड वीडियो करूँगा, राइट। सो यहाँ पे अगर आप इफ़ यू सी द OI डेटा, राइट, सो OI डेटा में ऑलमोस्ट 3.5 CR शॉर्ट्स कैरिड हुए हैं एंड 2.6 लॉन्ग्स कैरिड हुए हैं। सो ठीक है, डिसेंट डेटा विद अ माइल्ड बायस ऑन द short side. The biggest support is 22,000 for that expiry, for the coming 20th March expiry. The biggest support is at 22,000. So until unless 22,000, अब अगर आप if you go for 20th March expiry, right, अब confusion मुझे क्यों आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे they have removed 20th March, but in the bar chart they have not removed, right. So by default mistake हो गया है। सो इफ़ यू सी 20th मार्च की एक्सपायरी हम देख रहे हैं, तो 22,000 पे हैवीएस्ट सपोर्ट है, यहाँ पे भी एविडेंट है, क्लियर एविडेंट है, मतलब दिस इज़ द बिग मनी, मतलब 22,000 के नीचे नहीं जाएगा मार्केट। अगर 22,000 हिट भी करता है, इट वुड बी अ बिग बिग बाय फ्रॉम माई साइड एज पर द OI डेटा। बट इफ़ इन केस अगर मार्केट सस्टेन करता है, देखो यहाँ पे पुट के प्रीमियम कितने हैं, 25 रुपीज़ के, तो अगर 22,000 आता है तो ये ऑलमोस्ट रफली अभी 400 पॉइंट्स है, तो ये 200-250 पॉइंट्स बढ़ जाएगा, क्योंकि करंटली एट द मनी है मार्केट का 22,400, राइट। तो 22,000 आता है, तो ये अगर पुट का प्रीमियम इफ इट स्टार्ट राइजिंग अबव 200-250, तब जाके आपका 22,000 फॉल होएगा और आपको दिखेगा OI में रिडक्शन, OI चेंज में आपको रिडक्शन दिखेगा, राइट। सो 22,000 इज द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर 20th मार्च एक्सपायरी। एंड अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे, टोटल ओपन इंटरेस्ट फिर से हम स्विच करते हैं फ्रॉम 13th मार्च टू 20th मार्च। टोटल ओपन इंटरेस्ट में 22,400 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इक्वल नंबर ऑफ कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स हैं। और ये आपको अभी इक्वल राइटर्स इक्वल नंबर क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग आपका स्ट्रैडल कैरी करके जाते हैं 22,400 का, क्योंकि ओपन अगर मान लो फ्लैट हो गया, गैप अप गैप डाउन हो गया, तो उनको एटलीस्ट टाइम डीके मिल जाएगा। तो फॉर द कंबाइंड वाई ऑल्सो द बिगेस्ट सपोर्ट इज एट 22,000, ऑलराइट। तो 22,000 कंबाइंड OI भी है, और आई थिंक मैक्सिमम OI ही आई थिंक इस दिन बना है आपका थर्सडे को 22,000। अब देखते हैं कि मंडे के ओपन पे विल दिस गेट अनवाइंडेड और नॉट, इफ द प्राइस एक्शन इज बेरिश विल दिस गेट अनवाइंड। और ये पता है, एक एक चीज़ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि गैप अप कर दें लोग, गैप अप करके ये वाली जो पोजिशन होंगी, दीज पोजिशन विल गेट बुकड, द मार्केट्स विल बी गैप्ड अप एंड दीज पोजिशन विल गेट बुकड। एंड जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, टोटल ओपन इंटरेस्ट में आई थिंक PCR बना चुका है 5, ऑलमोस्ट 5.25, और ये जो आपका रेशियो है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल। सो यहाँ से अभी कोई बायस क्रिएट नहीं हो रहा, यहाँ से एक रेंज निकल के आ रही है 22,500 की, 2,500 22,000, अब 22,500 ही सॉरी मार्केट, अभी मार्केट का एट द मनी क्या है 22,400, राइट। सो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमको कब लॉन्ग जाना था 22,680 के ऊपर,
राइट। और वो पता है क्यों आ रहा है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो, क्योंकि 22,500 पे रेजिस्टेंस है। अब 22,500 में मार्केट आ भी गया तो 22,500 वाले जो कॉल सेलर्स हैं उनके पास 89 पॉइंट्स प्रीमियम है, राइट। तो ऑलमोस्ट 22,600 के ऊपर ही, मतलब 589 तो 22,590, 600 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, नॉट अबाउट 22,500, राइट। सो ठीक है, डेटा इतना बुरा नहीं है, आई थिंक डिसेंट है डेटा। जो हमारा पुराना एनालिसिस था ओआई डेटा का, दैट वाज टू बेरिश, क्योंकि मैं एक पुरानी एक्सपायरी देख रहा था। लेते हैं एनालाइज में एफ आई आई डी आई डेटा, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जो समरी है, एफ आई आई आपके सारे बेरिश हो गए, बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश है, राइट। बट जो आपके प्रोज हैं वो भी बेरिश हैं, बट जो आपके क्लाइंट्स हैं वो न्यूट्रल है। बट स्टॉक फ्यूचर में बुलिश है और पुट ऑप्शन में बुलिश है और कॉल ऑप्शन बेच है। तो मेजरली तो एक डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्रोज और एफ आई आई सेम डायरेक्शन में है और क्लाइंट अपोजिट में है, राइट। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी में, चलो बैंक निफ्टी, हाँ ठीक है, वो कट रिमूव कर दो, बैंक निफ्टी का वापस कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में देखो क्या है ना, सो इफ़ यू सी इन बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी में ओ आई चेंज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आई हैव गिवन, क्योंकि यहाँ पे चूंकि वो नहीं होता, आपका वीकली एक्सपायरी नहीं होता, तो चेंज नहीं करना पड़ा मुझे। सो बैंक निफ्टी में डेटा काफ़ी बेरिश है, दैट इज़ ट्रू। काफ़ी काफ़ी बेरिश डेटा है, एंड जो डेटा बन के गया है, पीपल आर एंटिसिपेटिंग द ब्रेक ऑफ 48,000 क्लियरली, सिंपल है। क्योंकि हमने जो प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में देखा था, देखो हमने जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की, 48,000 कितनी बार हिट ले चुका। तो लोगों को डर यही है, इसलिए ओ आई डेटा बन के गया है कि अगर 48,000, इफ 48,000 गेट्स ब्रोकन डाउन, और 48,000 पे ही कॉल ओवर ऐड हुआ है ऑलमोस्ट 2 लाख का। सो यही लोगों को डर है, और इन द मनी मतलब लोग, अच्छा चलो ये तो फिर भी ठीक है, 50,000 पे तो ठीक है, बनता है, क्योंकि उनको प्रीमियम सस्ता मिल रहा होगा तो राइट कर दिया। और इन द मनी जाके 47,400 से भी आपका क्या है कि अनवाइंडिंग हुई लॉन्ग पोजीशंस की, तो थोड़ा सा डेंजरस डेटा तो है। टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो बिगेस्ट सपोर्ट इज एट 48,000, इसलिए बोल रहा हूँ। और अगर आप एट द मनी देखोगे तो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बचे बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ पे डेटा देखो तो 48,000 का जो पुट है उसके पास सिर्फ 500 रफली पॉइंट्स प्रीमियम है। तो ये वाले जो पुट राइटर्स हैं ये पैनिक कब करेंगे, जब ये 500 550 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगा। तो ये पुट अगर 500 550 निकलता है तो ये 1000 होने की कैपेसिटी रखता है, ये याद रखना, क्योंकि बिगेस्ट सपोर्ट है यहाँ पे। और ये अनवाइंड हुआ तो स्ट्रेट फॉल आपको मिलेगा 47,500, यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट है, उसके बाद सीधा 47,000 ही मूव आएगा। चार्ट पे भी यही दिख रहा है और ओ आई डेटा में भी ये दिख रहा है। ओ आई डेटा में सपोर्ट किसी ने बनाया नहीं, माइनर सपोर्ट है 47,000 पे, सिर्फ 50,000 पुट राइटर्स का, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 46,500 पे। सो 47,000 तक, 46,000 तक भी कोई ऐसा ग्रेट सपोर्ट ऐड नहीं हुआ है ऑन द डे ऑफ 13th March for the expiry of 27th March. So this was the analysis guys for this one. This will be my second upload, एंड जो फर्स्ट अपलोड था एज आई मैंशनड जो मेरे को डिलीट करना पड़ेगा बिकॉज आई एनालाइज द रॉन्ग ओ आई डेटा। आई एनालाइज फॉर निफ्टी, फॉर बैंक निफ्टी इट वॉज करेक्ट, फॉर निफ्टी एनालाइज द डेटा ऑफ 13th March expiry which already has been expired. All right, so sorry from my side, and thanks to I think whoever has commented on the old video, that video will be deleted and this new cut will be released soon. Thanks traders, cheers in the market, stay safe and cheers for the markets.